Assalamu alaikum students. I am your principal course instructor Miss Anika Saidzia from University of Education Bank Road campus Lahore, and I'm your principal course instructor for this subject, which is advanced painting, and the course code is FINE 4134. First we will see your course outline. The first topic is introduction, then there will be looking back to the past. Then there is monochromatic tonal painting, importance of symbolic elements, practical assignments on composition. Then there will be preliminary sketches, painting on myself. Then there is another assignment in which you will do a master copy, in which you will use a mirror instead of a photograph. Introduction project on color harmony, modern concepts, social thoughts, self portrait using palette knife technique. In today's lecture, which is lecture number 19, we are going to cover the topic of grizzly painting. Grizzly painting is a method of creating an image using only variations of one color. It's often used to create the underpainting or first layer of a painting that will later be glazed with color. Grizzly painting basically आप कह सकते हो कि किसी एक कलर की डिफरेंट टोन्स के साथ आप जो है पेंटिंग को क्रिएट करते हैं, और इन सम केसेस जो ग्रेजली पेंटिंग है वो एज अ अंडर पेंटिंग या आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ पेंटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है. जैसे आप कह सकते हो कि आपके प्रिलिमिनरी स्केचेस होते हैं, ठीक है, पेंटिंग से पहले, जैसे कि आपके ओल्ड मास्टर्स जो हैं, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो, राफेल, वेलास्कस, वर्मियर, ये सब जो थे ओल्ड मास्टर्स, बिफोर गोइंग टू पेंट a masterpiece, they used to paint different series or different sketches or different preliminary paintings, under paintings, जिसके अंदर वो डिफरेंट कलर्स को और डिफरेंट अपने जो मिस्टेक्स थे, फ्लॉज थे, उनको करेक्ट करते थे, उनको एक्सप्लोर करते थे, और उसके बाद कहीं जब वो सेटिस्फाई होते थे तो उसके बाद वो अपनी जो फाइनल पेंटिंग्स थी उनकी तरफ जाते थे. सो जो ग्रिजली पेंटिंग है इट सेल्फ भी ये एक आर्ट वर्क, एक आर्ट फॉर्म है, और इसको एज अ अंडर पेंटिंग भी काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं वो करते रहे हैं और अभी भी करते हैं. Some very famous artists have painted using a process called grizzly. Grizzly painting is pronounced griz means eye, is done when an artist uses a limited palette related to one color like gray to create a painting's first layer called the underpainting. सो बेसिकली जो इसमें एक मेन कलर है जो डोमिनेट करता है वो ग्रे कलर है. अदरवाइज इसके अंदर हमें कुछ ऑकर की टोन्स भी नज़र आती हैं, बट जो मेन डोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट कलर है जो एसोसिएटेड है इस स्पेसिफिक टेक्निक के साथ, वो है ग्रे कलर. ग्रे इन इट्स वेरियस शेड्स और टिंट्स यू कैन से. जो डार्क टोन्स होंगी वो शेड्स में जाएंगी, जो उसकी लाइटर टोन्स होंगी वो टिंट्स में जाएंगी. What color is grizzly? A grizzly gray is a painting executed entirely in shades of gray or of another neutral grayish color. It is particularly used in large decorative schemes in imitations of sculptures. So, जो grizzly painting है, basically gray, we know that gray is a neutral color, that's why एक तो इसको यूज़ किया जाता है स्पेशली स्कल्पचर्स के लिए, स्कल्पचर्स की इमिटेशंस के लिए, कॉपीज़ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से इस तरह के आर्टिस्ट हैं. दे यूज़ टू गो इन डिफरेंट म्यूजियम्स इन अब्रॉड एंड दे यूज़ टू सिट in front of famous sculptures like of Michelangelo, Donatello. तो उनके जो स्कल्पचर्स हैं उनकी स्टडीज़ करते हैं बेसिकली आर्टिस्ट, अब चाहे वो पेंटर्स हों, बट दे टू इन्हांस देयर पेंटिंग स्किल्स, टू इन्हांस देयर ड्राइंग. बहुत से आर्टिस्ट हैं जो वहाँ जाके ड्राइंग्स करते हैं. तो वो जो कॉपीज़ बनती हैं, वो जो कॉपीज़ बनाते हैं पेंटर्स, वो बेसिकली ग्रिजली पेंटिंग होती है या ग्रिजली ड्राइंग होती है. ग्रिजली कलर में होता है बिकॉज
ग्रे की टोन्स में, क्योंकि ग्रे एक न्यूट्रल कलर है, तो आप इजीली उसमें लाइट्स एंड डार्क्स को, टिंट्स और शेड्स को इजीली जो है वो कैप्चर कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. The work of Grizzly may be created as an independent finished work, but it can also be employed as a preliminary underpainting for an oil painting that is subsequently overpainted with layers of color glaze. Grizzly is also employed as a preparatory model for an engraver to work from. So, as like I said before, कि ये जो है प्रिलिमिनरी अंडर पेंटिंग या प्रिलिमिनरी स्केचेस के लिए भी यूज़ होता रहा है ग्रिजली कलर एंड ग्रिजली पेंटिंग जो टेक्निक है. बट इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड बाय द इनग्रेवर्स. जो इनग्रेवर्स हैं, इनग्रेविंग्स करते हैं, सपोज रिलीफ वर्क बनाते हैं या इनग्रेविंग्स बनाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है. अगर आप ग्रिजली आपकी पेंटिंग है या ग्रिजली कलर में आपका स्केच बना हुआ है, तो वो इनग्रेवर को जो है या वुड कार्वर है अगर कोई, या स्कल्प्टर है, तो वो उसको हेल्प आउट करता है टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द फिगर और द स्कल्पचर, और उसके टिंट्स और शेड्स जो हैं उसको आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो बेसिकली जो स्कल्प्टर्स होते हैं, इफ़ दे आर डूइंग और इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग लो रिलीफ और हाई रिलीफ या इनग्रेविंग्स कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत हेल्प आउट करती है जो ग्रिजली पेंटिंग है. Additionally, it is often employed in ceramic art and metal work, but also in the coloring of stained glass. The most famous grizzlies were created in the period of early Renaissance and during the Florentine High Renaissance. So, as I told you before, that old masters like Michelangelo, Raphael, Leonardo, Donatello, Masaccio, all of them used to make underpainting first or preliminary paintings, then they go for the master painting. सो जितने भी आर्टिस्ट हैं, रैम्ब्रांड, वर्मियर, वेलास्कस, जो कि रेनेसांस के अंदर आते हैं, इन सभी आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिलिमिनरी स्केचेस किए हैं और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं. अगर उनकी ग्रुप फिगर्स हैं, तो उसमें से उन्होंने इंडिविजुअल फिगर्स को जो है सेपरेटली स्टडी किया हुआ है, उनके पोस्चर्स को, उनके गेस्चर्स को, उनके मसल्स को. दैट्स वाई जो ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग्स हैं वो क्लासिक आर्ट पीसेस हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमें फ्लॉज नहीं मिलते हैं और बहुत जो है वो एक्यूरेसी नज़र आती है. दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रिजली पेंटिंग. यू कैन पेंट एनी थिंग इन दिस टेक्निक. ऐसा नहीं है कि आप जस्ट पोर्ट्रेट्स कर सकते हैं और लैंडस्केप्स कर सकते हैं और स्टिल लाइफ्स कर सकते हैं. आपका कुछ भी जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है, बट ओनली you have to follow some specific tones or some limited tones of one color, and it could be gray color preferably, because gray color जो है उसको उसमें आप ज़्यादा जो है डिटेल में tints and shades जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ पोर्ट्रेट इन द ग्रिजली कलर, और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें उसी पोर्ट्रेट में, तो आपको थोड़ा सा सिपिया टोन नज़र आती है, थोड़ा सा ऑकर की लाइट टोन आपको नज़र आती है. तो उसके अंदर भी आप जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. बट प्रेफरेबली जो है वो ग्रे टोन्स हम यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए. सो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं. अपना सब्जेक्ट आपका सेल्फ पोर्ट्रेट भी हो सकता है, नेचर से भी हो सकता है, कोई सोशल इशू भी हो सकता है जो आप जिसके ऊपर आप काम करें. तो इन दिस लेक्चर you are going to prepare an assignment in grizzly colors, in grizzly painting, और आप चाहें तो पेस्टल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर ऑयल पेंट्स एज वेल. सो आपका जो टॉपिक होगा वो आप अपना जो है इसमें सेल्फ पोर्ट्रेट जो होगा, आप अपना सेल्फ पोर्ट्रेट करेंगे, और आप जो है ग्रे कलर टोन्स हैं आपकी वही प्रेफरेबली होंगी, और उसके अंदर जो है ये आप असाइनमेंट अपनी
प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।